Okay. Madam, we shall start. Yes, sir. Namaskar and a very energetic good evening. Once again, I, Dr. Preeti Chopra, welcome all of you on this informative online platform of SAM Global University Bhopal. आप सब जैसे जानते ही हैं कि हमारी ये वेबिनार सीरीज का जो थीम है दैट इज प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन कोविड-19 फॉर टुडे एंड टुमारो, और हम इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात कर भी चुके हैं. But today's aspect I feel is one of the most important aspect of this period. क्यों? क्योंकि we all human beings are social animals and this social word मतलब ये जो हमारी so called society है या हमारी social surrounding है, इसका impact हमारे दिल, दिमाग, intellect सब पे पड़ता है. And with the advancement of technology and education, we should have been happy कि हमारे पे ये impact positive पड़ेगा. But unfortunately, this impact is going on the negative side. I don't know why. Maybe because of materialism, peer pressures और the rat race of progress. और इसी pressure से हम कैसे उभरें, कैसे निकलें, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और बिना किसी विलंब के. इसीलिए first of all for that I welcome my members of management, our chairman respected Dr. Harpreet Singh Saluja sir, Honorable Chancellor Mrs. Preeti Saluja ma'am, always admired Vice Chairman Mr. Raviraj Chavla sir, our Principal in charge Dr. Akhilesh Singh, my dear faculty members, students, and my dear eminent guests and dignitaries who are connected to us on this platform. पर अगर मेरे इस वेलकम में मैं उनका एक प्रिविलेज आर्टी वार्म वेलकम ना करूं जो हमें ये सब सिखाने वाले हैं, तो ये वेलकम अधूरा रहेगा. So today I welcome our eminent speaker who is again one internationally acclaimed famous person, Mr. Girish Jha from Arizona, USA. Sir is member of American Psychological Association. Sir has been a very eminent part in International Health Exchange Ministry for 1 year. He was there in UN Drug Prevention Program एंड इसके अलावा सर ने और बहुत कुछ किया है जिसको शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर हैड बीन अ वेरी गुड टीचर, ट्रेनर, मोटिवेटर फॉर पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एंड सर हैज बीन प्रमोटिंग फॉर द वेलनेस ऑफ हेल्थ फॉर पेशेंट्स इनवर्टेड कॉमा विदाउट मेडिसिन. और अगर विदाउट मेडिसिन कर रहे हैं यानी कहीं तो हैप्पीनेस पेशेंट्स में भी ला रहे हैं और उसको लाने के लिए वन हैज टू बी हैप्पी हिमसेल्फ और हरसेल्फ आल्सो, जिससे हम अपने सराउंडिंग्स को पॉजिटिव करें. सर ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है मेडिटेशन पे. ही हैज presented papers around 20-25 papers on stress management and asthma. He has studied world religion, Eastern psychology, thousands of traditional practices under a team of esteemed 50 Himalayan masters. In addition to this, his formal education is in physics, chemistry, psychology, and physiology. And since last 15 years, Sir is in Arizona, USA. Now I request Jha Sir to please share his views and his inspirational words with us. Sir, please. Thank you. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. Dr. Preeti Chopra, thank you very much for introducing. My pleasure, sir. My pleasure. For introducing me to this august audience. I have special thanks for
Chairman Dr. Harpreet Saluja of SAM Global University, Chancellor Dr. Preeti Saluja, Vice Chairman Mr. Aviraj Chawla, and Principal Dr. Akhilesh Singh. I'm happy to be a part of this SAM Global University, and I thank you all for inviting me for today's talk. So today's subject is applied mindfulness and healthy living. Where should we start? That normally the question arises. You know, the speaker is always at hooks, where we should start. If we have the right knowledge of anything and everything, I have a right knowledge of how to work with my smartphone or remote or TV, then I can use that instrument very well. Have you heard the phrase Tat karmayanna bandhaya sa vidya ya vimuktai? Knowledge is supreme. Once we have a right knowledge, without any doubt, Tat karmayanna bandhaya sa vidya ya vimuktai ayasaya param karma vidyanya shilpane punam. So in Vishnu Puran it says knowledge is that by which we can end suffering. Sa vidya ya vimuktai. So we will understand how this knowledge of meditation and mindfulness has come to us, has been passed on to us by our great masters. At the same time, we'll also understand the scientific perspective. So in the first 20 minutes, I will give you some perspective. So knowledge, how do we get knowledge? You all are studying, I think. You all are studying Ayurveda. That is also a knowledge. How do we get knowledge? First thing to understand. I see you, I'm getting a knowledge about you. So what is the instrument of that knowledge? My sense organs are the instruments of the knowledge by which I know you, your name. Am I right? I'm starting the interactive session, but we'll have a question and answer session after 25 minutes. So understand, the senses and the mind are the instruments of the knowledge by which we know the external world. Isn't it? That is how we know the external world. And it is the sense organs and the mind used as an instrument of knowledge in the science. Take an example of a physics. So knowledge of physics tells me that I am looking at the monitor, which is the matter. Clear? There's my smartphone. I know through the instrument of mind that this is a smartphone. This is how it works. Am I right? I'm taking you to the journey of understanding the knowledge about mind and meditation. Now we have a spatial instruments in science. Telescope can see the stars. Are you aware of the telescope? Wonderful instrument.
Very special instrument. But can telescope see the cell? Telescope cannot see the cell of a human body. Do you agree with me? Now see another problem. Eyes is an instrument to see the color and the form. Can the eye see the sound? Can I see the sound? I'm taking directly you to the meditation. Can ears see you? So our masters have understood the limitations of these instruments, which are known as sense organs in the mind. Telescope cannot see the cell. How big it? Electron microscope cannot see the stars. How sophisticated the instrument. Similarly, sense organs and the mind are limited instruments that cannot see what we want to achieve through meditation. Coming directly, what we want to achieve through the meditation. What is the goal of meditation? We are getting a right knowledge. Before you say meditation doesn't work or you say meditation works, forget about that. First, we should have a right knowledge. The goal of meditation is to reveal the knowledge of a reality, knowledge of my true nature. Am I becoming more complex? I have picked up some of the Upanishads in teaching. देखो भाई, इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों का ज्ञान जो है वो सीमित है ना। पहली तो बात, आंख भी सीमित है, बहुत दूर नहीं देख सकती, बहुत नजदीक नहीं देख सकती, अपने को नहीं देख सकती। और इंद्रियां जो है उसी को देख सकती है जबकि इंद्रियों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दिखाई देने वाली की प्रॉपर्टीज से मेल खाती, तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर मैं आपको देख रहा हूं अपनी आंख से, तो आंख की योग्यता है, उसके लक्षण है कि वो नाम और रूप को देख सकती है। ये जो कान है वो ध्वनि को सुन सकते हैं। तो देखने वाला और दिखाई देने वाली दोनों की प्रॉपर्टीज बराबर हों, कुछ उसमें प्रॉपर्टीज मिलती हों, तभी हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? कुछ आ रही है समझ में बात? अब हम ध्यान की जब बात करते हैं, ध्यान का मतलब यह है कि मैं कौन हूं, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, मुझे उसको देखना है। क्या मैं इंद्रियों से देख सकता हूं? क्या मैं मन से देख सकता हूं? खोज करें, चलते आगे बढ़ते। जैसे मैं कहता हूं कि मैं, तो मैं चेतन हूं या मैं जड़ हूं? मैं चेतन हूं। तो कोई चेतन वाला ही इंस्ट्रूमेंट जो है, वही उसी के द्वारा मैं अपने आप को देख सकता हूं। तो साइंस की ये बात खत्म हो जाती है कि मुझे आंख से दिखाओ कि कहां है ट्रू नेचर, कहां है तुम्हारा रियल सेल्फ। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं? जब आंख ध्वनि को नहीं देख सकती, जब टेलीस्कोप इतना स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो सेल को नहीं देख सकता, नहीं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है ना। तो मैं चेतन हूं। देखिए एक और उदाहरण देता हूं, एक और सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मैं किसको देख रहा हूं? मैं हाथ को देख रहा हूं। मैंने क्या कहा? मैं हाथ को देख रहा हूं। क्या ये मेरा हाथ कहता है कि
कम ऑन, मैं आपको भी देख रहा हूं। कभी हाथ कह सकता है मैं आपको भी देख रहा हूं? No. क्यों? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं। हाथ क्या है? जड़। आप तो आयुर्वेद में पढ़ते हैं प्रकृति और पुरुष। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? जी सर। तो ये बात अगर द मोमेंट यू अंडरस्टैंड that the sense organs and the mind are limited instrument by which we cannot discover our true nature. फिर आगे चलते हैं। तो मैं उसको कहता हूं कि क्या कहता हूं कि ईस्टर्न विजडम इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज बाय विच वी discover our true nature. Our true nature, what is that true nature? What is that real self? थोड़ा सा उसको भी हम पहले समझ लें। True nature is known as सच्चिदानंद, पर ये सच्चिदानंद भला क्या है? तो ट्रू नेचर के 5 एट्रीब्यूट्स हैं। प्योर अवेयरनेस, ट्रुथ कॉन्शियसनेस, विजडम जिसको एब्सोल्यूट नॉलेज कहिए, लव एंड ब्लिस जिसको आनंद। शास्त्रों ने क्या कहा है? आनंदम वै ब्रह्म। तो व्हेन वी डिस्कवर अवर ट्रू नेचर by the practice of meditation, what happens? I discover my true nature, for example. What will happen to my life? First thing, that it brings an end to the suffering in my personal, in my professional, in my social life. Second is, I allow that inner peace and happiness to express in thought, speech, and action in day-to-day life. So I live my life with a creativity, in peace and happiness, in love and wisdom. So what becomes the goal of these masters that we have seen? Not only they evolve themselves, but they help everyone to evolve. Let me summarize where we have started. हमने शुरुआत की थी कि ज्ञान बहुत ही जरूरी है और स्पष्ट ज्ञान जरूरी है। पॉपुलर नॉलेज नहीं, रियल नॉलेज जरूरी है। फिजिक्स की रियल नॉलेज कहां से मिलेगी? फिजिक्स की किताबों से मिलेगी। ध्यान की सही ज्ञान कहां से मिलेगा? आइंस्टीन से मिलेगा, एडिसन से मिलेगा। शास्त्रों का ज्ञान तो ध्यान का ज्ञान तो शास्त्रों से ही मिलेगा ना। अब आयुर्वेद का ज्ञान आप लेने जाएं केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री की किताबों से नहीं मिलेगा ना। तो सिद्धांतों को, जो सिद्धांत हैं, जहां से ध्यान की शुरुआत हुई, उन शास्त्रों से तो ज्ञान लेना होगा और वो स्पष्ट ज्ञान लेना होगा। पहले सही ज्ञान ले लीजिए, फिर प्रश्न करिए। कई लोग करते हैं उल्टे प्रश्न करते हैं, ध्यान से क्या होगा, आयुर्वेद से क्या होगा। तुम्हारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो तामसिक गुण के लोग होते हैं उनको सीखना नहीं है, बस उनको विरोधी करना। दोनों ही प्रजातंत्र हैं, अमेरिका और भारत, आपको पता ही। कई लोग बस अपोज ही करने के लिए, तो वो तामसिक प्रवृत्ति की। तामसिक प्रवृत्ति में क्या होता है? संशय होता है। और आपको पता है शास्त्र ने संशय की परिभाषा क्या दी? जहां ज्ञान सो जाता है उसको संशय कहते हैं। तो क्या करना है कि ज्ञान सही प्रकार से लेना है, जो शास्त्रों में जैसा ज्ञान है, और उसके बाद देखना है कि क्या इस ज्ञान से हम
आगे बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते। ये बात मैंने पहले रखी। सा विद्या या विमुक्तये, हमारे यहां ज्ञान की परिभाषा है कि वो ज्ञान जिससे मुझे मुक्ति मिले। किससे मुक्ति मिले? स्ट्रेस से, सफरिंग से, एंजाइटी से, डुअलिटी से, कॉन्फ्लिक्ट से। और फिर उसको मैंने समराइज किस भाव में किया कि ज्ञान के यंत्र जिसके द्वारा हम विज्ञान और भौतिक जगत को देखते हैं, वो यंत्र अलग हैं, और जो यंत्र जिसके द्वारा हम अपने आप को देखते हैं, वो यंत्र अलग है। तो देखिए, दो बातें हो गई। विज्ञान किसकी खोज करता है? जो मैं नहीं हूं। आप अभी कंप्यूटर मॉनिटर पे हैं, क्या आप कंप्यूटर हैं? नहीं है। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। क्या मैं शरीर हूं? शरीर भी जड़ है। क्या मैं बुद्धि हूं? नहीं हूं। श्वास हूं? नहीं हूं। प्रकृति पुरुष, हम जानते हैं। तो किस प्रकार वो ज्ञान जिससे कि हम ध्यान की यात्रा कर सकते हैं, वो ज्ञान विज्ञान के ज्ञान जो कि भौतिक जगत की खोज करता है, उससे पूरी तरह से अलग है। तो अब दोनों को मिलाएंगे कैसे? पहली बात, शास्त्रों में बड़ा ये कहा है, श्रोतव्य मंतव्य निधात निधादेस्य सितव्य श्रवण मनन निध्यासन। तीन बातें मैं बताता हूं, गहराई से आप पहुंचेंगे किसी भी ज्ञान को जानना हो। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज आई डोंट नो, लेट मी नो इट। मुझे याद है कि एक केमिस्ट्री के टीचर ने क्लास में गया और उसने H2O लिख दिया और पूछा लोगों से, स्टूडेंट से, कि ये क्या है। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि आपने इंग्लिश गलत लिखी, H2O। इंग्लिश में H के साथ बाद 2 नहीं आता। तो जिसको अगर केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं होगा, उसको H2O का पता नहीं। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं? सिंपल सी बात। तो पहला स्टेप है, आई डोंट नो, लेट मी नो इट। प्रिंसिपल्स एज इट इज, उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं करना है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, आप कहेंगे ये क्यों है? तो पहला स्टेप है कि जो ज्ञान है उसके जो सिद्धांत हैं उसको मुझे आई डोंट नो, लेट मी नो इट। दूसरा स्टेप है, आई डोंट अंडरस्टैंड, लेट मी अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या चाहिए? बुद्धि का प्रयोग। तो अब आपने खुद सोचना है कि व्हाट, व्हाई, वेयर एंड व्हेन ऑफ दैट नॉलेज। आई डोंट अंडरस्टैंड, याद रखिएगा, आई डोंट नो, लेट मी नो इट। आई डोंट अंडरस्टैंड, लेट मी अंडरस्टैंड इट। वहां पे टीचर से पूछिए, ठीक है आपका ये सिद्धांत है, हमने समझ लिया, अब आप बताइए ये कैसे, क्यों है? अविराज जी, हमारे शास्त्रों में बड़ा क्लियर है, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। तो ज्ञान को जिस तरह से हम सीखना चाहते हैं, उस तरह से जो शास्त्र में बताया गया उस तरह से सीखें तो सही। हम कहां मना करते हैं कि, हम कहां कहते हैं कि आप विश्वास करें, नहीं श्रद्धा रखो, नहीं। बिलीफ in our text is belief pending inquiry। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि श्रद्धा हमें इसीलिए करनी है कि उसकी खोज करनी। दो बातें हो गई ना, आई डोंट नो, लेट मी नो इट। आई डोंट अंडरस्टैंड, लेट मी अंडरस्टैंड इट। अब ध्यान के बारे में, आई डोंट एक्सपीरियंस, लेट मी प्रैक्टिस इट। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। श्रवण, उसको कहते हैं आई डोंट नो, लेट मी नो इट। आई डोंट अंडरस्टैंड, लेट मी अंडरस्टैंड इट। मनन हो गया। पर अब मैंने समझ तो लिया, अनुभव नहीं है, तो अभ्यास करें। पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध।
ही इज सेइंग प्रैक्टिस विद विजडम। कौन सा विजडम? प्रैक्टिस विद विवेक। और वो विवेक कहां से आएगा? पहले दो पार्ट से। पहले दो पार्ट से, श्रवण और मनन से आएगा। श्रवण मनन किया नहीं, ध्यान कराते हो जी। मेरे पास कई लोग आते हैं, ध्यान कराते हो जी। मैं भी करता हूं। कैसे करते हैं? आंख बंद करके सांस पे ध्यान जो है लगा लेता हूं। कितने साल से कर रहे हैं? 10 साल से। क्यों आए हो? बड़ा स्ट्रेस है। क्या मतलब हुआ? ध्यान कर रहे हैं आप 10 साल से। श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों स्टेप पूरे नहीं हुए, सफल नहीं होगा। तो ये बात क्लियर समझ लीजिए कि ध्यान की यात्रा के लिए इंद्रिय और मन यंत्र, ज्ञान के यंत्र के रूप में काम नहीं करते हैं। वहां पर हमारी ईस्टर्न विजडम, योग को कहिए इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, तंत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, मंत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज दैट हेल्प्स अस टू go into meditation. Follow as it is the principles of meditation as explained by our teachers. यहां भी कई कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, मैंने कहा you need not to interfere in the principles laid down by the teachers. Let me go into meditation and then do any kind of research studies on me. I am always open to it. क्या मतलब हुआ? I should not allow them to overpower the principles of meditation and replace it with the science. समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझे? छोटा सा एग्जाम्पल। आई ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का ज्ञान। एक फिजिक्स ज्ञानी है, वो शरीर को कैसे देखेगा? कि सेल जो बना हुआ है उस सेल के अंदर क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यही सब है ना, वही केमिकल है ना। और केमिकल क्या है? पदार्थ है। तो एक फिजिक्स का ज्ञानी कहेगा नहीं ना दिस इज ऑल मैटर, दिस इज ऑल मटेरियल वर्ल्ड। और एक आप डॉक्टर, आपके पास कोई आए पेशेंट, तो आप उसी मैटर को एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में देखेंगे। देखिए ज्ञान परिवर्तित हो गया, बदल गया ना ज्ञान। आप फिजिक्स की तरह थोड़ा कहेंगे ना ऑल एवरीथिंग इज मैटर, गो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप डॉक्टर हैं भाई, आप कहेंगे सिम्टम्स क्या है, आप उसको सेल के रूप में देख रहे हैं। देखो एक ही चीज के दो तरह के ज्ञान हो गए ना। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? आप सब यंग है, मैं भी यंग था, मैं बड़ा विरोध करता था। क्या है, सब है शास्त्र में, बेकार है। पिताजी स्कॉलर थे संस्कृत के, और पिताजी ने कितनी भी सिखाने की कोशिश की, उस समय नहीं सीखा, और जब रियलाइज हुआ तब पिताजी चले गए। दो तरह ज्ञान, एक ही वस्तु है, शरीर वही है। अब आते हैं ध्यान की बात। क्या मैं शरीर हूं? तो ध्यान में हम कहते हैं मैं शरीर ही नहीं, क्योंकि शरीर जड़ है। तो उस ज्ञान को सीखना है जिससे कि हम उस स्थिति तक पहुंच सकें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। तो ये प्रक्रिया क्या है? इसी प्रक्रिया को दैट वेरी प्रोसेस इज नोन एज मेडिटेशन इज नथिंग बट ट्रांसेंडिंग द माइंड। मन के पार कैसे जाना है, उसके लिए ये डिवाइस है, उसके लिए ये तरीका है, उसके लिए एक ये पद्धति है। तो थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर मैं बंद करता हूं इस बात को। विज्ञान विरोधी नहीं है,
हमारी परंपरा का। We should complement science wherever it is applicable. फिजिक्स का ज्ञान जहां एप्लीकेबल है वहीं लगाओगे ना आप। या एक डॉक्टर ने डॉक्टरी भी की, आप सबने आयुर्वेद का भी ज्ञान लिया, आप डॉक्टर भी बन गए और आपके मन में फिजिक्स का ज्ञान छाया हुआ है, और पेशेंट आएगा कहेंगे नहीं सब पदार्थ है, चिंता मत करो, जाओ, खत्म। तो साइंस शुड कॉम्प्लीमेंट माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। अब कहां से इन दोनों के तार जोड़ें? जब आप ध्यान करते हैं निरंतर रूप से तो कहां बदलाव आता है? मन में बदलाव आता है। आप कहते हैं आई एम रिलैक्स्ड एंड काम एंड इन पीस। तो बार बार मन के अंदर ये अनुभव को अगर हम डालते हैं, द मोर एंड मोर you repeat the practice of meditation, what is going to happen? It is going to change the brain. Brain के pathways बदल जाएंगे ना। So scientists during the last 4 decades have understood that the regular practice of meditation changes your brain pathways. Google out. You will find at least 300 research papers on how it influences the brain. तो पहला part है neuroplasticity. It changes the brain pathways. It also affects the mutation. Epigenetics जिसको कहते हैं, और एक और वर्ड है न्यूरोजेनेसिस। हम कहते हैं ना कई लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो इनहेरिटेड है, तो वहां पर उन लोगों ने प्रयोग किया कि अगर रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन के पाथवेज बदल जाते हैं। क्या मतलब हुआ ब्रेन के पाथवेज बदलने का? मतलब हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारे रेस्पॉन्सेस बदल जाते हैं। ये वेल एस्टेब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स हैं। तो अगर ये बदलेगा तो योग थोड़ा सा ध्यान और आगे जाता है। अब ये बदलेगा तो क्या होगा? एटीट्यूड बदलेगा तो क्या होगा? हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, और पर्सनैलिटी विल चेंज। हमारी पर्सनैलिटी में बदलाव आएगा तो क्या होगा? हमारी पर्सनल लाइफ बदलेगी, हमारी प्रोफेशनल लाइफ बदलेगी, हमारी सोशल लाइफ बदलेगी। और ये बदलेगी तो क्या होगा? हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। वी सेट एन एग्जाम्पल that we are an epitome of peace, love, kindness, and compassion. And we are going to influence not the people around the family, around the society, in our workplace. Last only, I think, am I okay, Dr. Preeti? Yes, sir, sure. So, now, have you understood one part? That whether you say yoga, mantra, tantra, Shaivism, any path that we all know, we are all Indians, they are an instruments of knowledge by which we discover our true nature. That is the goal of meditation. Byproducts are relaxation, calmness, managing the stress, anxiety, depression. These are the byproducts. But ultimate goal is to find the true nature. अब आप कहेंगे बार बार आप रिपीट कर रहे हो, ट्रू नेचर क्या भला? स्टूडेंट्स बड़े स्मार्ट स्टूडेंट्स की मैं पिक्चर देख रहा हूँ, पूरी वीडियो नहीं देख रहा। स्टूडेंट्स बड़े स्मार्ट। ट्रू नेचर क्या है? तो पहली बात यह है कि ट्रू नेचर में कॉन्शियसनेस एक पार्ट है। बिना कॉन्शियसनेस के, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई नो माई हैंड, तो मैं आई कहां है? आई उस कॉन्शियसनेस में है ना,
हाथ में तो नहीं है, हाथ तो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें भी जानता हूं। द हैंड इज नॉट कॉन्शियस। हैंड, एक तो हैंड कॉन्शियस नहीं है, इसका मतलब आई एम नॉट द बॉडी। खैर उस तरफ बाद में हम जाएंगे, वापस आते हैं ट्रू नेचर पे। मैं कल भी ऐसी बात कर रहा था कि द स्वीटनेस ऑफ ए शुगर इज द एसेंशियल नेचर ऑफ ए sugar. In Ayurveda also, I think you might be studying the intrinsic nature. The essential properties कौन सी हैं, non essential properties आप पढ़ते होंगे, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है आयुर्वेद का। Now डेजर्ट आप बनाए, खीर बनाए, तो खीर आपकी नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी, पर उसमें एसेंशियल प्रॉपर्टी कौन सी है, शुगर, स्वीट। स्वीटनेस को सॉल्टी बना सकते हैं कभी भी, वो एसेंशियल प्रॉपर्टी है, वो कभी बदलने वाली नहीं। उसी तरह से हमारे गुरु लोग, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि मनुष्य के अंदर का जो केंद्र है, जो उसका स्वरूप है, वो क्या है, वही सच्चिदानंद है, वही प्रेम ज्ञान आनंद से भरा है। उसकी खोज ध्यान की यात्रा है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं ये बात नहीं, सब कुछ उन्हीं से सिखाया हुआ है। फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे आप, न्यूटन्स, एडिसन, आर्किमिडीज, हजारों साइंटिस्ट, तो हमारे यहां भी तो हजारों साइंटिस्ट हैं, उन्हीं से आए हुए। पतंजलि को ले लो, पतंजलि क्या कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि मन को पूरी तरह से खाली कर देने का नाम योग है। और हमारे शास्त्र वेद व्यास जी कमेंट्री जब देते हैं पतंजलि की, तो योग की परिभाषा क्या करते हैं, अविराज जी हैरानी होगी आपको, पतंजलि योग सूत्र ने की व्याख्याकार कौन है, वेद व्यास। वेद व्यास को तो पता ही है हम कौन, तो वेद व्यास जी योग की परिभाषा क्या कहते हैं, योगः समाधि। तो मन को खाली करने से योग पूरा हो जाएगा, समाधि हो गई। अब समाधि का लाभ क्या है, तीसरा सूत्र पहले चैप्टर का, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाता हूं। अभी किसका ज्ञान है, अभी अपने स्वभाव का ज्ञान है। दो चीजें, देयर आर टू थिंग्स, पर्सनैलिटी एंड एग्जिस्टेंस। पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ माई एटीट्यूड, बिहेवियर, क्रेविंग, प्लेजर, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, दैट इज पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व कौन सा तत्व है, व्यक्ति का। कहां से बना, किससे बना, मन से बना। मन ने कहा ये अच्छा है तो मैं अच्छा हूं, मन ने कहा ये बुरा है तो बुरा हूं। तो भाई मन की भी तो खोज कर लो कि ये क्यों अच्छा है, ये क्यों बुरा है। तो ये नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, व्यक्तित्व। और अस्तित्व क्या है, हमारा स्वभाव, हमारा स्वरूप, ट्रू नेचर। तो व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर यात्रा करने का नाम है ध्यान। उपाय है, यंत्र कौन सा है, ये सारे ज्ञान के यंत्र हैं जिनका उपयोग करते हुए हम अपने अस्तित्व तक पहुंच सकते हैं। और अस्तित्व तक पहुंचने का लाभ क्या है, संपूर्ण जीवन में परिवर्तन। मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, पतंजलि कहते हैं कि 3 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, निरोध परिणाम। अभी हमारा मन भटक रहा होगा ना, मेरी बात भी सुन रहे होंगे, पता नहीं क्या बकबक किए जा रहा है, कहीं होंगे मन में, होना भी चाहिए। तो वहां पे पतंजलि कहते हैं जब ध्यान करोगे तो एकाग्रता का परिणाम हो जाएगा। क्या एकाग्रता का परिणाम का क्या मतलब, कि मन जो भी काम कर रहा है, जिसमें लगा,
पूरी एकाग्रता। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, समाधि परिणाम हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन, ही यूजेस द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा निरोध परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। आप इन तीनों का इस्तेमाल मन के ऊपर करो। आप क्लास में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एकाग्रता परिणाम है, आपने पढ़ा, अब आपको नोट देखने की जरूरत नहीं, आपको याद है, ध्यान की उपलब्धि। निरोध परिणाम, काम कर रहे हैं, खेल खेल में काम करें, कृष्ण लीला और रामलीला, परिवार में भी रहे, निरोध परिणाम, मन खाली रहेगा। समाधि परिणाम, समाधि परिणाम, हम अपने सच्चे स्वरूप में स्थित बने रहेंगे। मैं सोचता हूँ डॉक्टर प्रीति चोपड़ा जी, मैं यहाँ विराम देता हूँ। सर की इन बातों से मुझे लगता है हम सब जो मेडिटेशन को एक बहुत भारी चीज समझ के बोलते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, अब हम सबको ऐसा लगने लगेगा आई वांट टू नो, आई वांट टू अंडरस्टैंड। एंड द रीजन, क्योंकि एवरीबॉडी टुडे इज इन सर्च ऑफ काम माइंड, गुड कंसंट्रेशन, बेटर क्लैरिटी, इम्प्रेसिव। अनम्यूट हो गया, हाँ। ये सब हमको कैसे मिलेगा, ये सर एक आगे आने वाले इंटरैक्टिव सेशन में बताएंगे, जिसके लिए आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अखिलेश सिंह सर, सर प्लीज आप आए, इंटरैक्टिव सेशन करते हैं। जी धन्यवाद मैडम। सर ने जैसा अभी तक अपने उद्बोधन में बताया कि योग बेहद सरल स्वरूप का है, लेकिन गूढ़ता है इसके अंदर, गंभीरता है इसके अंदर। इसको योग के उस गंभीरता के तल पर समझने के साथ साथ आत्मसात करने की आवश्यकता है। सर ने विष्णु पुराण की भी बात अपने वक्तव्य के शुरू में ही कही। विष्णु पुराण कहता है कि जीवात्मा और परमात्मा का पूर्णतया मिलन योग है। पूर्णतया मिलन कैसा मिलन? अद्वैत मिलन, जहां द्वैतवाद खत्म हो जाए, जहां परमात्मा में अपने को विलीन कर दे और परमात्मा जीवात्मा में, यानी दोनों एक इमिसिबल, एक दूसरे में अपने अस्तित्व को विलीन कर दे, ऐसा ही योग है। मेरे साथ सर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास हैं। विद्यार्थी बहुत सारी अपनी मन में जो उद्भुत प्रश्न है, अपनी जो जिज्ञासाएं हैं, वो सर के साथ चर्चा करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने BAMS तृतीय वर्ष की छात्रा अपूर्वा राय को आमंत्रित करता हूं कि वो उनके मन में जो भी सवाल है, जो भी जिज्ञासा है, वो सर के साथ साझा करें, जिससे उनके मन की जिज्ञासा सर के द्वारा शांत की जा सके। अपूर्वा राय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। So very first of all, I would like to thank you that how beautifully you have described meditation. Secondly, to our Sam Global University. So my question is कि आपने जैसे कहा कि योग जो है वो आप as पतंजलि described कि योग जो है वो मन को खाली कर देता है। सर सेम उन्होंने अष्टांग योग का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो सर वो जो आपने चीज कही कि माइंडफुलनेस और दूसरी चीज की ये मन को खाली कर देता है, तो क्या ये दोनों चीजें आपस में रिलेट करती हैं या फिर दे बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट? अच्छा प्रश्न है। आप अपने घर के तुरंत बाहर खड़े हुए हैं, एक परिस्थिति, और आप अपने घर के बाहर हैं पर 1000 किलोमीटर दूर हैं। मैं उत्तर दे रहा हूं, पकड़ना। और आपको फोन आता है, कहां है? घर के बाहर हूं। दोनों परिस्थितियों में आप घर के बाहर हैं, ठीक है। तो अच्छा भाई, घर कब पहुंचोगे? बस मैं पहुंच गया, बताओ। अगर घर के बाहर है और 1000 किलोमीटर दूर है, अच्छा नहीं, तुम जरा 3 दिन के बाद फोन करना। तो ये जो 3 दिन के बाद मैं घर पहुंचूंगा,
इसका नाम है अष्टांग योग। Yes. और आप तुरंत हैं, आप तैयार हैं, आप घर के तुरंत बाहर ही तो खड़े हैं। इसका नाम है समाधि योग, जो कि पहले चैप्टर में दी गई। Yes. अब थोड़ा सा एक लाइन और चाहिए। पहले चैप्टर में, पहले समाधिपाद में, समाधिपाद उन लोगों के लिए है जो साधक हो गए हैं। एक व्यक्ति से जब कोई साधक हो जाता है तो उसके लिए डायरेक्ट प्रक्रिया है कि आप अपने मन को खाली करें। साधक होने की प्रक्रिया बिल्कुल वही है। कैसे वही है? अब उसकी भी बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझ लें। कार डीलर के पास जाएं, कहें कि कार चलानी है, वो कहेगा लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस तो नहीं है, चलाने देगा? Yes. तो व्यक्ति से साधक बनने की प्रक्रिया है जिसमें कि बेसिक फाउंडेशन तैयार करता है गुरु शिष्य की। तो वो वही तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। आई डोंट नो, लेट मी नो इट। आई डोंट अंडरस्टैंड, लेट मी अंडरस्टैंड इट। नाउ आई डोंट एक्सपीरियंस, लेट मी प्रैक्टिस। तो उच्च कोटि के साधकों के लिए पहला चैप्टर है। थोड़े से नीचे, थोड़ा सा दूर हैं तो दूसरे चैप्टर में पहला सूत्र क्या है? क्रिया योग की बात की गई है। 3 बातें हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो दूसरे लेवल के साधकों के लिए जब ट्रेनर हो गए हैं, जब थोड़ा सा ड्राइवर टीचर के साथ थोड़ी सी ड्राइविंग वगैरह सीख ली है, साधक की परिभाषा पता लग गई, समझ आ गई, तो वो डायरेक्टली फिर इस पाथ पर जा सकता है। क्या? क्रिया योग के बाद भी। क्रिया योग के तुरंत बाद ये कहा गया है उससे क्या होगा? क्या होगा? समाधि भावनार्थ, क्लेश तरुणार्थ, कि क्लेशों का क्षय होगा, प्रॉब्लम्स दूर होगी, सफरिंग दूर होगी और आप ध्यान में प्रोग्रेस करेंगे। ये दूसरे लेवल के साधकों के लिए। उच्च कोटि, मध्यम कोटि और निम्न कोटि। निम्न कोटि के साधकों के लिए अष्टांग योग का साधना करो। यम से शुरू करो। नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समझ में आया? Yes. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने उसकी उत्सुकता को शांत किया। अभी हमारे साथ सेकेंड ईयर के शुभम त्रिपाठी हैं। उनके मन में कुछ सवाल है योग से संबंधित, वो अपने शंका का समाधान करना चाहते हैं। शुभम त्रिपाठी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं देख नहीं रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप जिन चीजों से हम बहुत दूर थे सर, आपने उन्हें बहुत करीब लाके खड़ा कर दिया है सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा कही गई है, समदोष समाग्निश्च श्रम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। और सर WHO भी यही कहता है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलनेस ऑफ द बॉडी। तो सर क्या बॉडी वेलनेस या बॉडी हेल्थ केवल मेंटल पीस तक ही सीमित है? बहुत अच्छी बात। तो तुरंत उल्टा प्रश्न क्या है कि शरीर और मन क्या अलग है? पहले तो यही हम समझ लें कि शरीर और मन भला क्या है। तो एक तो मॉडर्न साइंस में जो हम कहते हैं साइकोसोमैटिक
और एक शब्द इस्तेमाल करते हैं सोमैटोसाइकिक्स, शायद आपने सुना होगा, आप सब डॉक्टर ही हैं। यस सर। साइकोसोमैटिक, मेरे मन में समस्या आई, ये समस्या शरीर के अंदर गई और शरीर से वापस मन में आई, इसको हम कहते हैं साइकोसोमैटिक। और इसका उल्टा, शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है, मन बड़ा दुखी हो गया, मन दुखी होने के साथ फिर उस दुख को वापस शरीर में ले आया, तो इसको हम कहते हैं सोमैटोसाइकिक। ये बात पहले स्पष्ट कर लेनी है। दूसरी बात, हमारे आयुर्वेद और योग के सिद्धांत एक ही हैं, और स्थूल शरीर का कारण क्या है? सूक्ष्म शरीर। आप सबने पढ़ा है, मैं वही बात दोहरा रहा हूं, आप ज्ञानी हैं, मैं वही बात दोबारा बता रहा हूं। भाई, स्थूल शरीर का कारण क्या है? सूक्ष्म शरीर, ठीक। और सूक्ष्म शरीर का कारण क्या? इसीलिए तो हम उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर में क्या है? आप उसको कहिए अनकॉन्शियस, रिप्रेस मटेरियल। तो एक कारण है, सारे कारण नहीं, कि बीमारी का जो उद्भव है उस अविद्या, वासनाओं और उनसे होकर सूक्ष्म शरीर में आता है, सूक्ष्म शरीर से होकर स्थूल शरीर में आता है। तो अब आप खुद देखिए कि पहला उपाय क्या करना है। पहला उपाय अगर हम मन के स्तर पे करते हैं तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, और बाकी जो कुछ बचा तो हमें शरीर के स्तर पे नॉलेज, ज्ञान है ही, तो शरीर, वो स्थूल शरीर का भी उपचार करें। तो स्वाभाविक रूप से, अब आपकी बात, आपने बड़ी अच्छी बात की कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड द स्पिरिचुअल वेलबीइंग। वो स्टेट है जिसको कि हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो आप अपने आयुर्वेद में भी देखिए और योग में भी, अगर इन दोनों को मिला लेते हैं तो हम सभी स्तरों पर एक व्यक्ति के अंदर स्वास्थ्य को ला सकते हैं। पर एक बात फिर मैं दोहराना चाहूंगा, हमेशा इस बात को मैं बार बार रहता हूं। शुरू के 10 साल मैंने हठ योग इतना ज्यादा किया, तो गुरुदेव के पास मैं गया, ज्ञानी पुरुष थे, तो मैं 6 महीने मैं भी वहां पे मदारी का खेल दिखाता था लोगों, गुरुजी को। तो गुरुजी ने कहा कि मैं भी करता था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ हुआ? तो मैंने कहा हुआ तो कुछ नहीं, मैं भी 10 साल से कर रहा हूं। अब इसको जोड़िए किससे? श्रवण। आई डोंट नो, लेट मी नो इट, कि शरीर में, शरीर के स्तर पे आसन किस प्रकार मुझे करने हैं जिससे कि उसका प्रभाव मन के ऊपर भी पड़े और कर्ण शरीर के ऊपर भी पड़े। हम क्या चाहते हैं? पूर्ण स्वास्थ्य। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? पकड़ रहे हैं? तो अब ये बात मत करिएगा कभी भी कि यहाँ पर भी कई लोग हैं, एक बहुत सुंदर स्त्री हैं और पिछले 15 सालों से हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं, खाली 3 ही बार स्पाइन की सर्जरी करवाई है, मैं नाम नहीं ले रहा। तो इस बात पर हठ धर्मिता नहीं होनी चाहिए, समन्वय। आपकी आयुर्वेद की परिभाषा में भी आपने भी कहा कि हमें देखना है कहां किस चीज की जरूरत है। अब मैं भाई, घाव मेरा चाकू से, ब्लेड से मेरा शरीर कट गया है, मैं कहूंगा मैं ध्यान के द्वारा ठीक कर लूंगा, तो ये अज्ञानता है ना। ज्ञान सर्वोपरि है, आयुर्वेद हो, योग हो, हमारे शास्त्र हो। एक ही बात याद रखिएगा कि ऐसा ज्ञान
जो मुझे समस्याओं से मुक्ति दे। यहां से यात्रा शुरू करिए और जोड़िए, शरीर के स्तर पे जोड़िए, मन के स्तर पे जोड़िए, भावना के स्तर पे जोड़िए, ध्यान को जोड़िए। उत्तर खत्म। धन्यवाद सर। सर अब हमारे साथ द्वितीय वर्ष BAMS के विद्यार्थी हैं अनुभव जैन। वो अपने प्रश्न को आपसे पूछना चाहते हैं। अनुभव जैन। ये तो अनुभवी है, तो फिर इनको क्या प्रश्न पूछने की जरूरत है, फिर भी पूछ लीजिए। गुड इवनिंग सर। कहिए अनुभवी। आपका आवाज मेरी has 4 years. Am I audible now? Yes. So my question is, as memory has 4 different stages: reception, registration, retention, and recall. So does mindful activities improve the 4th stage? Anubhav, you are not audible now. अनुभव जैन, यू सर हैव। ये पूछना, हाँ सर ये पूछना चाह रहे थे कि जो अपनी जो कैचिंग पावर होती है, रिकैप्चुलेशन पावर होता है और मेमोराइजिंग जो पावर रहती है, रिटेंशन पावर, इसका ये जो तीनों फैकल्टी है इसकी, ये क्या मेडिटेशन या इन उपायों से इसमें वृद्धि की जा सकती है? 200%। अगर आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, समझ के, फिर मैंने बार बार कहा ध्यान क्या है इसको गहराई से समझ के, और केवल साधारण ध्यान का अभ्यास भी करते हैं नियमित रूप से, तो ये मेमोरी जो है रिटेंशन हुई और क्यों बढ़ जाती है, रिकॉल की मेमोरी ये क्यों बढ़ जाती है, अगर इस पर ध्यान दें तो समस्या का समाधान हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, try to understand that we say there is a memory of consciousness and there is a memory of mind. The memory of the mind is constantly changing depending on the circumstances, the world outside in which we interact, and the state of the mind. But the memory of the consciousness remains the same all the time. It keeps everything intact. दो बातें हो गई, ये तो पहले ये समझना। तो उसकी चर्चा मैं ज्यादा नहीं करूंगा। वो मनीषा का शब्द इस्तेमाल किया है, मेधा शब्द इस्तेमाल किया, और बहुत सारे शब्द उसके इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें इशारा है कि वो जो चेतना की स्मरण शक्ति है, अगर उसमें हम स्थापित हो जाते हैं, इसीलिए बुद्ध ने क्या कहा, माइंडफुलनेस को क्या कहा, याद है आपको? अष्टांग जो 8 फोर नोबल पाथ में, उसको ये कहा है सम्यक स्मृति। ध्यान का नाम ही दिया है सम्यक स्मृति, कि वो मेमोरी ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, मेरा जो सच्चा स्वरूप है वो फेड कभी नहीं होगा, इट विल नेवर फेड अवे। मेमोरी ऑफ द कॉन्शियसनेस, पहली बात। नाउ यू आर इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन. Not only you are in the state of meditation, but you are thinking, working in that state of meditation. Clear? Now that memory of the consciousness is working on the mind. Did you get the answer? Yes, sir. I need to explain it. That memory of the consciousness
is now working on the mind. और उससे पहले क्या था? उससे पहले the mind was working on me. Are you understanding? When the mind is working on me, then what happens? The mind is constantly wandering, agitated. It prefers likes over dislikes. It prefers love over hate. It is constantly in the state of hesitation and confusion. Reverse in meditation, memory of the consciousness. Now that consciousness is working on the mind. साधारण भाषा में ध्यान में एक बड़ी उपलब्धि होती है कि क्या आप मन के ऊपर शासन करना शुरू कर देते हैं। और आम जीवन में व्रति सारूप्यम इतरत्र, पतंजलि का चौथा सूत्र है कि जब आप ध्यान की अवस्था में नहीं होते हैं तब क्या होता है? मन कौन सी अवस्था में रहेगा? क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त। क्या इन अवस्थाओं में मेमोरी बढ़ेगी? उत्तर आपके सामने। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। चरक ने भी सर सूत्र स्थान में इस बात को इंगित करते हुए कहा है कि उनका इंद्रिय और विषयों से अलग होकर आत्मा में स्थित हो जाना ही योग है। उन्होंने योग की परिभाषा ही ऐसी बताई, वही ध्यान है, क्योंकि एक्चुअली या वही ज्ञान है, क्योंकि ज्ञानाधिकरण आत्मा ही ज्ञान का अधिकरण है। बिल्कुल। मन अपने ओरिजिनल स्वरूप में जब आत्मा के साथ अलाइन होता है तभी आत्मा ज्ञान का अधिकरण होती है। और जब तक ये मन इंद्रिय और इसके विषयों, जिसको इंद्रियार्थ कहा है चरक ने, बहुत तो सुंदर इंद्रियार्थों के साथ जब तक संलग्न रहता है, तो चरक ने भी इस बात को बहुत बखूबी बखान किया जो इस बच्चे ने पूछा अनुभव ने। इसका एक उत्तर चरक सूत्र स्थान में ही मिलता है। बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद सर। सर हमारे साथ एक प्रथम वर्ष की विद्यार्थी है आयुषी गुप्ता, वो आपसे कुछ संवाद करना चाहती है। आयुषी गुप्ता। आयुषी Good evening, sir. गुड Good इवनिंग, evening, sir. गुड मॉर्निंग, गुड Sir, इवनिंग। as we all know, students are preparing for competitive exam like NEET, IIT. So, my question is, how to cope up with this stress, anxiety resulting from facing failure rather than opting suicide and self-harm? देखो यही ट्रेनिंग में यहाँ बच्चों को भी आई गिव very intensive training to the high school kids here in Arizona, and I also have a lot of specialized programs in universities and colleges here. Question is competition के बाद jealousy, like and dislikes, ये सारे, all these factors enters into the mind, and that causes fear, anxiety, and ultimately sometimes have the suicidal tendencies. एक बात simple, understand a very simple thing. When the mind is scattered outside, it picks up millions of thoughts, people, things, and events, out of which you filter certain thoughts and feelings and actions which you feel is good for you. एक ये journey. And what is the second way of dealing with it? Move the mind deeper within. Gather the threads of the consciousness that is scattered outside. Move it inside. First, live into that state of the peace and happiness and wisdom. Then live and work in the world from inside to outside. Simple answer दे रहा हूं। You are living, you are preparing for competitive examination from inside to outside.
तो अब ये इनसाइड टू आउटसाइड क्या होगा? इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड का मतलब ये है कि आप ध्यान की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में क्या होगा, क्या सीखेंगे आप, क्या अनुभव होगा? थोड़ा सा और मैं इसको विस्तार से बताता हूं। देखो 3 चीजें हैं, परिस्थिति संसार में, मनोस्थिति मन में, आत्मस्थिति ध्यान में। अब अगर आप आत्मस्थिति में बने रहेंगे और वहां से बन के आप मन में आइए, तो आत्मस्थिति का प्रभाव मन पे पड़ेगा या मन का प्रभाव आत्मा पे पड़ेगा? आत्मस्थिति का प्रभाव मन पे पड़ेगा, तो मन शांत रहेगा। अब यही मन बाहर जाएगा परिस्थिति पर, तो उन परिस्थितियों को विवेक से देखेगा। तो विवेक से देखने की जो प्रक्रिया है, प्रज्ञा अपराध, डॉक्टर साहब आपके यहाँ प्रज्ञा अपराध है, मैं थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है तो आत्मेंद्रियार्थ, अपराध और परिणाम, ये 3 रोग के कारण, 3 रोग के कारण है। तो ध्यान में देखो कितना आत्मस्थिति हो गई। अब उस आत्मस्थिति से, विवेक से मैंने ये देखा, ये मन की स्थिति हमेशा बदलती रहती है भाई। क्यों बदलती रहती है? अज्ञान के कारण बदलती रहती है। तो मैं अज्ञान को दूर कर लिया, तो अज्ञान को दूर कर लिया तो सुसाइडल टेंडेंसी आएगी मन में? क्या एंजाइटी रहेगी? अब मन शांत है, आत्मस्थिति का प्रभाव मन पे पड़ा ना, अब मन बाहर संसार को देख रहा है। तो अब गीता को ले आता हूं मैं बीच में, क्या कहते हैं? समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते क्या? ये संसार, गुरुदेव मेरे कहते थे कि ये संसार जो है भाई, संसार में समस्या नहीं है, संसार ही समस्या है। अब ये मैंने देख लिया। क्या मतलब देख लिया? संसार ही समस्या। क्या मैं समझूं कि यहां पर लाइक्स और डिसलाइक्स, प्रॉफिट और लॉस, विक्ट्री और डिफीट, ये इस संसार में हमेशा से हैं, रहेंगे। मैंने अपना पूरा प्रयास करना, सफलता आए फूल के कुप्पा नहीं हो जाए, असफलता आए निराशा नहीं होनी। तो विवेक से मैं पहले ही तैयार हूं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पहले ही मैं तैयार हूं। परिश्रम पूरा किया, चाहे नेट का एग्जामिनेशन दो, चाहे यहां पर आकर सेट का एग्जामिनेशन दो, चाहे पारिवारिक जीवन में परीक्षा दो, नियम वही है। प्रज्ञा अपराध खत्म होना चाहिए। वो कैसे खत्म होगा? ध्यान की अवस्था में आने से वो खत्म होगा। कुछ बात अंदर गई? नहीं गई? बिल्कुल सर, समझा है। परिस्थिति को आप अपने वश में नहीं कर सकते। संसार को वश में कर सकते हैं? नहीं। कहते हैं ना, संसार को वश में नहीं कर सकते, अपने को बदलना है। तो ध्यान अपने को बदलने की प्रक्रिया। अपने को पहले बदलें, ध्यानस्थ हो जाएं, ध्यान के द्वारा मन के ऊपर शासन करें और मन के द्वारा संसार में व्यवहार करें। आप मस्त हैं। कृष्ण ने भी वही किया। बिल्कुल। और पतंजलि ने भी पंच क्लेशों की जो कल्पना बताई, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, अभिनिवेश, वो इसीलिए बताया क्योंकि मानसिक अस्वास्थ्य के मूल हैं। तो इसलिए यदि विद्या आ जाएगी, विजडम आ जाएगा और विद्या खत्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली इस तरह की भावना या इस तरह के विचार बच्चों के मन में नहीं आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक विद्यार्थी सर और हैं, द्वितीय वर्ष के देवेंद्र त्रिपाठी। उनके मन में कुछ उत्सुकता है, वो आपसे साझा करना चाहते हैं। हाँ देवेंद्र सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्रणाम आपको भी।
सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जीवन शैली के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है सर योग और ध्यान से हम लोग को अवगत कराया। सर मेरा सवाल वही था सर, जो आपने बताया सर ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है और एकाग्रता से व्यक्तित्व बढ़ता है। तो सर मेरा वही सवाल था, उत्तर तो मुझको मिल गया कि एकाग्रता का, लेकिन सर आजकल की जीवन शैली में सर जैसे इतना सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए हैं या क्लास में बैठे हुए हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो वो एकाग्रता नहीं आ पा रही है सर। अभी जैसे आपने बताया सर वेबिनार में बैठे हैं और दिमाग कहीं और चल रहा है, कहीं और दिमाग घूम रहा कहाँ है। चल रहा है त्रिपाठी जी? कहाँ चल रहा है दिमाग? बनारस में है, इलाहाबाद में है, कहाँ है? देवेंद्र जी ने प्रश्न बड़ा अच्छा है। एक बात बताइए, क्या अभी ये सैम का कॉलेज भूल जाते हैं आप? नहीं सर। नहीं भूलते? एकाग्रता बनी रहती है? जी सर। अच्छा, अपना घर कभी भूल जाते हैं? नो सर। अच्छा, वहां भी एकाग्रता बनी रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा सा और आगे, अपने प्रोफेसर्स को भूल जाते हैं? नहीं सर। तो समस्या कहाँ है? मनन करना है, वही सिद्धांत है। आई डोंट नो, लेट मी नो इट। आई डोंट अंडरस्टैंड, लेट मी अंडरस्टैंड इट। इन दोनों सिद्धांतों को हम कर रहे हैं। मैं क्यों भूल जाता हूं, एक ये प्रश्न है। और एकाग्रता क्यों नहीं बनती है? तो घर नहीं भूलता, प्रोफेसर नहीं भूलता, सैम कॉलेज नहीं भूलता, क्यों? क्योंकि मेरे मन ने उसको महत्व दिया है। मन जब महत्व देता है तभी विचार आएंगे उससे संबंधित, और वही विचार बार बार दोहराएंगे तब वो आसक्ति बनेगी। आसक्ति होगी तो इच्छा उत्पन्न होगी। मैं गीता का उदाहरण दे रहा हूं, एक एक चेन रिएक्शन है उसका। तो आसक्ति से क्या होगा कि इच्छा उत्पन्न होगी, काम। मैं उसको किसको एक्सप्लेन कर रहा हूं? अविद्या, काम, कर्म, तीन पार्ट। तो अब इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा उत्पन्न होने से मेरा मन का व्यवहार उन्हीं चीजों में जाएगा जहां मेरी इच्छा बनी हुई है। आगे की बात आपको पूरी करनी है कि आजकल सोशल मीडिया और ब्ला ब्ला ब्ला, आपकी आगे की बात आपने स्वयं पूरी करनी है। यहां तक तो मैंने आपकी मन के अंतर मन की बात कर दी। तो इच्छा आई, इच्छा से आसक्ति आई, आसक्ति एकदम पकड़ लेती है, टिंग टिंग। और सबसे पहले छोड़ो लेक्चर की बात, पहले स्मार्टफोन पहले देखो। आसक्ति, वो ये चेन रिएक्शन यहां तक अंदर की है। अब और बात आगे देखिए, कृष्णीय क्या कहते हैं। तो हमारे क्रेजी कृष्णाल यादव जी क्या कहते हैं कि जब ये इच्छा का प्रभाव मन के ऊपर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? स्मृति नष्ट हो जाएगी। स्मृति नष्ट होने से क्या होगा? किसकी स्मृति नष्ट हो गई? किस चीज की स्मृति? कि मुझे जीवन में करना क्या है, दिशा क्या है। और इससे क्या होगा? भ्रम। भ्रम से क्या होगा? केवल दुख, और उस दुख के अलावा कुछ नहीं। मैंने उत्तर दिया कि जहां जहां आप अपने मन के द्वारा जिस वस्तु को महत्व देते हैं, वहां पर अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे अखिलेश जी की अविद्या आ जाती है। तो विवेक के द्वारा, विवेक कब आएगा? जब चिंतन करेंगे। सेकंड पार्ट, मनन, कि मैं कहां जा रहा हूं,
क्यों जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं, कितना लाभ होगा, क्या लाभ होगा। अब दोस्तों से मिलना है, दोस्त बड़ा दबाव दे रहे हैं, अब उसकी इच्छा उत्पन्न हो गई, अब उसने अविद्या को मन के अंदर प्रभावित कर दिया, तो सोशल मीडिया में जाएंगे ही आप। कौन रोकेगा? कोई प्रोफेसर भी अगर दबाव दे दे तो नहीं रोक सकता। अविद्या के द्वारा काम का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, भ्रम में पहुंच गए, और भ्रम में पहुंच गए तो वो दुखी करेगा ही। अब उल्टा इसका, मेरी टीम है इंडिया में, वो भी सोशल मीडिया का मेरे लिए इस्तेमाल करती, तो वहां भी आप इस्तेमाल कर सकते। विवेकपूर्ण उत्तर मिला। अपने मन के अंदर जाके बहुत दिनों से परेशान था सर कि शारीरिक रोग को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रोग को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। जिन जिन चीजों को आप महत्व देते हैं उसी तरह का आपका व्यक्तित्व बनेगा, और महत्व आप अविद्या में देते हैं तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा जीवन। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इतने विद्यार्थियों की उत्सुकता को आपने शांत किया और इनके साथ इंटरैक्ट किया। सर, इस पूरे सेशन में हमारे साथ बहुत सारे डिग्निटरीज भी रहे, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर से हमारे साथ डॉक्टर के शर्मा सर जुड़े थे। अच्छा। डॉक्टर अनीता मैडम, दोनों प्रोफेसर हैं। के शर्मा सर स्वस्थवृत्त में प्रोफेसर, सबको नमस्कार। तंत्र में प्रोफेसर। डॉक्टर एपीएस चौहान सर क्रियाशाली में प्रोफेसर हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े रहे। डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल मैडम क्रियाशाली में ये भी प्रोफेसर है हमारे साथ थी। डॉक्टर राकेश निंजा सर उज्जैन से हमारे साथ जुड़े थे, और डॉक्टर निधि श्रीवास्तव। ऐसे बहुत सारे डिग्निटरीज आपको बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे सर। तो आपने एक ऐसा मंच हम लोगों को दिया, एक ऐसा योग बनाया जिसको मैं कहता हूँ योग बेहद सरल है, और हम सभी का आपस में जुड़ना आज इस प्लेटफॉर्म पर ये भी योग है। बिल्कुल, क्योंकि योग का मतलब जुड़ना ही है। तो और योग शब्द इतना सरल भी है और इतना व्यापक भी है कि आप एरिजोना से हमारे साथ है, इस कड़कड़ में योग है, तो वहां से लेके यहाँ तक योग का फैलाव योग की व्यापकता को ही इंगित करता है सर। तो योग की सरलता और व्यापकता ही है कि आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर इतने सरलता के साथ जुड़ करके बात कर रहे हैं। इसके साथ ही योग शाश्वत और नित्य भी है सर, क्योंकि हमारे सृष्टि की उत्पत्ति से योग है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक योग होगा। क्योंकि जब तक कोई भी दो कण आपस में मिलेंगे नहीं, फ्यूजन नहीं होगा, तब तक कोई निर्माण नहीं होगा। यानी योग के बिना तो कोई भी सृजन नहीं हो सकता। तो इसलिए योग एक ऐसी चीज है जो सृजन का मूल है। तो योग मुझे लगता है सभी विद्याओं का मूल है, क्योंकि बिना योग के कोई भी चीज जन्म नहीं ले सकती सर। तो इसलिए आपने इतने अच्छे से हम सभी को इतनी सरलता के साथ इन चीजों को शेयर किया। अब मैं डॉक्टर प्रीति चोपड़ा मैडम को माइक को देता हूँ, वो आगे की प्रस्तुति के लिए। डॉक्टर प्रीति चोपड़ा। अखिलेश सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सर ने इतनी सरलता से हमें ये समझा दिया कि मेडिटेशन कोई वैराग्य या संन्यास का टॉपिक नहीं है। मेडिटेशन मेक्स अ माइंड शार्प विदाउट एंगर, टेंशन, जेलसी, ईगो, राइवलरी। और ये सारी चीजें छोड़ के जब हम अपने मन पे कंट्रोल करते हैं तो मुझे लगता है वी ऑल बिकम इमोशनली स्टेबल। और ऐसा स्टेबल बंदा स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, पेरेंट, एम्प्लॉय अगर होगा तो वी विल बी एबल टू create a better me and a better society. So thank you so much for such pure and simple words. And now I would like to extend my thanks on behalf of my team to our members of management, respected chairman, Dr. Harpreet Singh Saluja sir,
Honorable Chancellor, Mrs. Preeti Saluja ma'am, our Vice Chairman, Mr. Raviraj Chawla sir, faculty members, students and all our esteemed guests who are connected on this platform. And sir, एक और बार बड़ा सा एक humble thanks to you for blessing us with such pure and inspirational words. आपने वो स्पार्क आज हमें डेवलप किया है कि हम सब मेडिटेशन को बहुत सोचे नहीं, अपने रोज के रूटीन में उसको ऐड करें, इनकलकेट करें और एक प्योर पर्सन बन के आपको दिखाएं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू एंड गुड नाइट. इनफैक्ट सर को गुड मॉर्निंग कहना Good चाहूंगी morning. क्योंकि जहाँ सर Good है night. वहाँ गुड मॉर्निंग है सर. अ वेरी warm and a pure good morning from your side. And good night to you all. Thank you so Thank much. you, sir. Thank you, sir. Thank you.